Hello everyone and a very good evening to all of you and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss a very important topic and that is sustainable development goals. So I hope you are aware of this. If you are reading any newspaper or if you have seen the previous year question of any exam, I'm sure you must have come across this term sustainable development or sustainable development goals. So in today's class, we will first discuss the history of sustainable development because that is important. Because there have been questions on it. We will discuss what is the meaning of sustainable development. Then we will discuss about the SDG goals, the sustainable development goals set by United Nations. And after that, we will discuss each and every goals in detail, little bit in detail. And after that, we will discuss the Niti Aayog's SDG index, SDG India Index, Sustainable Development Goals India Index, and for which it comes up with a ranking of different states and all, which is asked in different exam. SDG हमेशा अगर आप कोई भी previous year question उठा के देखो, you can check any previous year question, CLAT, ALET, SLAT या किसी भी exam का जिसमें भी GK current affairs पूछा जाता है, SDG is very, very important, Sustainable Development Goals. So that is why I have decided to take this class. So am I audible, visible? अगर मेरी आवाज आ रही है, if everything is clear, please write yes in the comments so that we can start our session. Okay. Yes, good evening, Agastya. And good evening, everyone. Am I audible, visible? Everything is fine? So if visibility or audible is there, then please write yes. Okay, so let us begin with today's class. So this is the first question. I will discuss initially some questions, then I will discuss theory also. Okay, so this is the first class which is in front of you. Please read it and then answer me. The concept of sustainable development was first discussed in Kyoto Protocol, Montreal Protocol, Brundtland Report, Rio Summit. This is an ALET previous year question. So this was asked in the ALET exam a few years back. ठीक है, मैं आपको दिखाते जाऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चंस आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड. यानी जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो फर्स्ट कब दिया गया था एंड इन विच ईयर? इफ यू टेल मी, आई विल बी वेरी हैप्पी. द आंसर इज यस. Agastya Iyer has said the answer is Brundtland Report. C is the right answer to this question. Although you can say कि बाद में Rio Summit और Kyoto Protocol में भी use किया गया, but since the word first discussed is in the news, is the question, you are supposed to answer the most appropriate, and that is option C. Yes, Agastya Iyer, you are right. 1987 Brundtland Report. Yes, Priyanshi Goel, you are also right. So C is the right answer to this question. So 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी, आवर कॉमन फ्यूचर करके, उसमें डिस्कस किया गया था. नाउ वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू नो अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, रियो समिट क्या है, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, सो प्लीज गो एंड वॉच इट. ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा. मैं इसमें स्टार लगा देता हूं एंड प्लीज सर्च दिस इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल समिट्स करियर लॉन्चर. यू विल गेट दिस वीडियो. गो एंड वॉच इट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन यू गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स in Wikipedia, yeah, sustainable development in Wikipedia, you will see this. Okay, so in 1987, UN World Commission on Environment and Development released the report Our Common Future, commonly known as Brundtland Report. So Brundtland Report का एक दूसरा नाम है Our Common Future. तो हो सकता है ये भी ऑप्शन में लिखा हो instead of Brundtland Report. They might write Our Common Future 1987, which for the first time defined sustainable development. है ना? तो उसने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया 1987 में. So what it means that development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. ठीक है, मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ, it means that we are utilizing the resources but we should not be overutilizing the resources. Should not be overutilizing the resources. Because if we overutilize the resources, what will happen is कि for the next generation we will leave nothing, है ना? तो कहने का ये मतलब है कि डेवलपमेंट ऐसे कीजिए, रिसोर्सेज को इस तरह यूज कीजिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़िए ना. So it has actually, है ना, so it is actually taking it from two aspect. One is actually कि we should not do environmental damage, है ना. एक तो ये है कि इतना environment damage किया, इतना किया कि next generation के लिए छोड़ा ही नहीं कुछ, फॉरेस्ट बर्बाद कर दिया और समथिंग लाइक दैट. सेकंड थिंग इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, है ना.
मतलब कि सारा कोल, पेट्रोल, डीजल सब इसी जनरेशन ने यूज कर लिया, ऑल द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड एंड इट इज लेफ्ट नथिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड ग्रोथ, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस वी नीड टू बैलेंस द ग्रोथ and that is the idea, that we should not be unnecessary actually wasting the resources and all, है ना। so ये है sustainable development का idea. so this is being talked about much, है ना। this is actually, it goes against the idea of consumerism, है ना। कंज्यूमरिज्म समझते हो ना, खूब खरीदना, खुद सामान खरीदना, खूब फालतू वेस्ट करना। सो कंज्यूमरिज्म मींस ओवर वेस्टेज, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल, यानी कंज्यूमर, है ना। तो इसके अपोजिट है एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो वी नीड टू मतलब बैलेंस द इन्वायरमेंट एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एज वेल एज डेवलपमेंट, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया, है ना। सो दैट इज व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विकिपीडिया में जाओगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही डिस्कस है ब्रंटलैंड रिपोर्ट एंड ऑल। So this you should be knowing it because this has already been asked in the exam. Now the next is, which of the following is considered as precursor of sustainable development goals? Precursor का मतलब होता है जो इससे जस्ट पहले था and it was working more or less for the same purpose. Precursor means like there was something similar to that and it was working like this only, है ना। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ही काम कर रहा था मोर और लेस, और इससे पहले वो गोल था। व्हाट इज दैट? प्लीज टेल मी एंड आई थिंक इट्स इजी। आई बिलीव दैट एवरीवन शुड बी आंसरिंग इट। सो इफ समवन इज सेइंग डी देन प्लीज टेल मी कि व्हाट इज द आंसर, ठीक है। अगर आप डी बता रहे हो सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर। Yes. So the right answer is actually A, Millennium Development Goals कहते हैं MDG. So A is the right answer to this question. So Sustainable Development Goals से पहले गोल हुआ करता था, उसको हम लोग Millennium Development Goals कहते हैं, ठीक है। And there were total 8 Millennium Development Goals. Total 8 Millennium Development Goals होता था, जो कि 2000 में सेट किया गया था. It was set in 2000 and the target was supposed to be achieved by 2015. ठीक है, ये टारगेट था। ओके, सो 8 इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था, 8 2000 में सेट हुआ था और 2015 में टारगेट था अचीव करने का। ओके, तो है ना 191 कंट्रीज थे, तो उसमें ये दीज आर द 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। टू एराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया, टू इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टू डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। सो दीज वर द 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। और इसको मॉनिटर करने के लिए 8 मिलियन डेवलपमेंट गोल्स के साथ फॉर दैट देयर वर G8, अब G7 हो गया ये, वर्ल्ड बैंक, IMF, अफ्रीका, दिस अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। तो ये सब सारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, नहीं MDG नहीं रिमेंबर करना अगस्त्य, ये पुराना हो गया, दिस इज नाउ ओवर, लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया, ठीक है। MDG नहीं याद करना है, बस इतना पता होना चाहिए कि बिफोर SDG देयर वाज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम 2000 टू 2015, ये याद होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। मैं एक आइडिया दे रहा हूं आठों को दिखा करके, सो जस्ट हैव एन आइडिया। सो दीज आर द 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, है ना। ये यूनाइटेड नेशन इसको सेट किया था गोल ईयर 2000 में एंड टारगेट था 2015 में। सो दिस गोल इज नाउ ओवर, ये है ना। सो दीज आर 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो ये था उस टाइम पर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन. The next is now we are having sustainable development goals. So the period of sustainable development goal is between which time period? And how many goals are there? कितने goals हैं sustainable development? Yes, Priyanshi Goyal, you are right. Agastya Iyer, you are right. हाँ, 2015 से 2030 and there are 17 sustainable development goals. Great. हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि 2000 से 2015 तक जो टारगेट था दैट इज कॉल्ड एज MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, है ना। कितने गोल्स थे? 8 गोल्स वेर देयर टू बी अचीव्ड, सेट बाय यूनाइटेड नेशन। फिर 2015 से 2030 तक वी आर हैविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG एंड इसका गोल है 17 गोल्स है, ठीक है। मतलब 2015 में सेट हुआ था और 2030 में टारगेट है टू अचीव,
है ना, कहीं पे 2016 भी लिखा रहेगा तो भी चलेगा, बिकॉज 2015 के बाद से शुरू हुआ था, बट जनरली 2015 to 2030 लिखते हैं. Somewhere you will find 2016 to 2030, but that is okay also. ठीक है. So these are the things you should know about sustainable development goals. We will discuss it. घबराना नहीं है. We will discuss each and everything. And this has been set up. आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है established 2015 and till target is to be achieved by 2030 and by set by United Nations. Okay. Yes. Let's move on further. है ना. तो it is true that the concept of sustainable development goals was first given in 1987 or defined in 1987 by the report called as Our Common Future, है ना, or what we call it as Brundtland report. However, later on also this concept was used. Like 1992 में Earth Summit happened in Rio de Janeiro in Brazil, है ना. इसमें भी the concept of sustainable development was discussed. I have taken this class. इसमें मैंने आपको बताया है रियो समिट के बारे में 1992. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्लास जरूर देखिएगा एंड मेक नोट्स 1992 में. एंड हियर actually the concept of Agenda 21 was discussed. What is Agenda 21 discussed in Rio Summit? क्या है ये? Can anyone tell me? So Agenda 21 means is the idea of sustainable development in 21st century. ये idea है. Sustainable development in 21st century. In 21st century. Is it clear? हाँ. So it is Agenda 21 is an initiative under Rio Summit. This actually concept was given, which 21 means 21st century. So the idea is sustainable development in 21st century. तो यहाँ पे भी उसकी discussion हुआ था. ठीक है. So that is what you should be knowing about. Okay. Now let's move on to the next question. And the next question is, which of the following concept was given by Indian Prime Minister which is similar to the concept of sustainable development? So मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक वर्ड बोला था COP26 ग्लासगो में. COP26 ग्लासगो, which talks about this sustainable development. प्रतिज्ञा, लाइफ, प्रतिष्ठा, दिशा. Yes. कुछ लोग आंसर चेंज कर दे रहे हैं. चेंज क्यों कर रहे हैं? आंसर इज बी, लाइफ. यस प्रियांशी, सैफी, अगस्त्य, आप लोग सही हो. राइट. लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट कहते हैं इसको. ठीक है. इसमें कैपिटल एल, स्मॉल आई, कैपिटल एफ, कैपिटल ई ऐसे लिखा आता है. ठीक है. सो व्हेन यू रीड इट इट इज एक्चुअली दिस, है ना, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट. ये 21 डे चैलेंज वगैरह भी हुआ था. तो इसमें हुआ ये था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इन COP26 ग्लासगो ही गिव द कॉन्सेप्ट, टॉक्ड अबाउट लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट and calling upon global community of individuals to drive life as an international mass structure. मैं सिंपल लैंग्वेज में बताया तो वही कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के अगेंस्ट, है ना. यानी ओवर कंजम्पशन नहीं होना चाहिए. अभी मैंने आपको बोला भी था थोड़ा देर पहले that when I said few minutes back is sustainable development means the concept of sustainable development is against consumerism. यही है ना. यानी फालतू पैसा बर्बाद नहीं करना, फालतू कपड़ा नहीं खरीदना, फालतू इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद नहीं करना, है ना. सो वी शुड नॉट वेस्ट द रिसोर्सेस, वेदर इट कैन बी एनर्जी, क्लोथ, फूड, एनीथिंग. ठीक है ना. फ्यूल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी ऐसी चीज है इसका फालतू यूज नहीं करना, ओवर यूज नहीं करना है. वी नीड टू कंट्रोल द यूजेज, है ना. सो इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कंज्यूमरिज्म, है ना. वही है, देखो लिखा ना यहाँ पर, डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन. यानी इतना ज्यादा इंसान यूज कर रहा है कभी कभी कि वो डिस्ट्रक्टिव, यानी बर्बाद कर सकता है समाज को, मतलब इन द सेंस की एनवायरनमेंट डैमेज कर सकता है. इट मे नॉट लीव रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड ऑल. सो दिस कॉन्सेप्ट, है ना, कि वी इंस्टेड, है ना, लिखा ना कि वी शुड एक्चुअली बी माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन. लिखा ना, यानी कोई भी रिसोर्स यूज करें तो माइंडफुल हो, जितना जरूरत हो उतना यूज करें, इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजप्शन. यही है ना लाइफ का मतलब. ऐसे नहीं कि जो चाहे फालतू उड़ाए जा रहे हैं, या अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है तो बर्बाद कर रहे हैं, या किसी के पास रिसोर्स ज्यादा है वो बर्बाद कर रहे हैं, ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं. किसी के पास 100 शर्ट है, 100 पैंट है, उतना जरूरत भी नहीं है, मतलब एग्जांपल बता रहे हैं. और लेट्स से पेट्रोल है तो बहुत ज्यादा पेट्रोल बर्बाद कर रहे हैं, और समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज द आइडिया दैट वी हैव टू एक्चुअली कंट्रोल दिस, है ना, माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन.
दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब कुछ लोग पूछेंगे सर ये COP26 क्या है ग्लासगो में. सो दिस वी हैव डिस्कस्ड हियर. अगर आप ये क्लास देखोगे तो मैंने आपको बताया है कि UNFCCC क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है. 26 जो हुआ था ग्लासगो में हुआ था, वेयर एक्चुअली पंचामृत वाज डिस्कस्ड, है ना, 5 इंपॉर्टेंट गोल्स. तो ये सब इस क्लास में डिस्कस्ड है. सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन बिकॉज यू कैन वॉच इट. ठीक है. सो ये सब आपको पता होना चाहिए. लेट्स मूव ऑन फर्दर, है ना. तो मैं एक नीति आयोग का डॉक्यूमेंट देख रहा था, तो उसमें भी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन है ना. तो इससे क्या है कि जैसे अगर हम लोग इफ यू आर ओवर यूटिलाइजिंग तो एनवायरनमेंट डैमेज होगा. तो ये देखो जैसे एक स्विस कंपनी को रिपोर्ट दिखा रही है कि 18% GDP का लॉस होगा 2050 तक अगर क्लाइमेट एक्शन नहीं हुआ. यानी हम लोग क्लाइमेट के जो डैमेज हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको कंट्रोल नहीं किया. सो दीस आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट. लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. मैंने आपको बताया देखो इसके आगे ये बना रहता है. दिस इज द लोगो ऑफ व्हाट, बताइए तो. What is this? Logo of United Nation. ये पता होना चाहिए. This is, and I have made a separate video on it. So go and watch it. अगर आपने United Nation पे नहीं देखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एग्जाम में पूछा जाता है UN से क्वेश्चन. ये सगत है. You're right. हाँ. प्रियांशी गोयल, right. हाँ. तो अगर आपने नहीं देखा, so search this on YouTube and watch it and make notes. Yes, UNO भी कह सकते हो. Yes, right. Okay, so let's talk about the 17 sustainable development goals. तो अब सारे 17 जितने भी गोल्स हैं उसको धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करते हैं. So let's begin, है ना. तो these are the 17 sustainable development goals. अब आप पूछोगे सर इसको रखना है कि नहीं. इसमें 2-3 चीजें हैं. कुछ जो इंपॉर्टेंट वंस है मैं हाईलाइट कर दूंगा. I will discuss all the 17, but some of them are directly asked in exam, in different exam. ठीक है, not always, but yes, कुछ पूछा जाता है directly. This is SDG कौन सा है, which SDG is that. Okay. So that is why I have decided that I should discuss all the 17s, so that if there is a question you will discuss. बाद में मैं लास्ट में बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट वन है. ठीक है. तो जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप और गोल्स. ठीक है. इसमें से जो इंपॉर्टेंट वंस है आई एम डिस्कस, मैं आपको रेड से हाईलाइट कर रहा हूं. ये वाला इंपॉर्टेंट है. नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी. शुरू का 5 याद रख लीजिएगा, SDG 5 तक. और ये रिड्यूस इनइक्वालिटी, SDG 10 ये याद कर लीजिएगा. और आजकल क्लाइमेट की काफी बात हो रही है, SDG 13 याद कर लीजिएगा. ठीक है. और ये दोनों भी हालांकि क्लाइमेट से ही रिलेटेड है. तो अगर मिनिमम है तो बहुत अच्छी बात है. Otherwise, if you remember all 17, that is great. But at least whatever I have highlighted, try to remember it. मतलब मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ कि इसी में से क्वेश्चन आएगा. But yes, I can have some sort of guess. ठीक है, कि आपको रफ आइडिया होना चाहिए. Now I'll discuss it one by one. ठीक है. तो ये सारा क्या है, ये इंश्योर करना है कि 2030 तक ये टारगेट अचीव हो जाए. ठीक है. ओके. इसमें से बहुत सारे ऐसे टारगेट हैं जो कोविड की वजह से डिस्टर्ब हो गए. ओके, कोविड और वॉर्स भी कह सकते हो. नॉट ऑल बट यस सम ऑफ देम. जैसे फॉर एग्जांपल आई होप यू आर अवेयर, जैसे मान लीजिए पॉवर्टी डिक्रीज हो रहा था. ठीक है, बहुत अच्छे से. लेकिन जैसे कोविड आया, मामला गड़बड़ा गया, फिर थोड़ा सा ऐसा हो गया. सो आई एम जस्ट गिविंग अ बेसिक आइडिया. ठीक है. फिर और दूसरा है जीरो हंगर. तो हंगर का ही मामला ऐसा ही कुछ था कि हंगर. फिर जैसे अब मान लीजिए वॉर्स स्टार्ट होने लगी और कोविड, 2 चीज हो गया. वॉर ऑन रशिया यूक्रेन वॉर एंड इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल. तो वॉर जो 2 बिग वॉर्स के कारण सो स्लाइटली ऊपर हो गया, या मतलब जो इंप्रूवमेंट हो रहा था वो उतना नहीं हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजन, द मेन 2 रीजंस आर एक्चुअली कोविड पैंडेमिक व्हिच हैपेंड इन 2020. आई होप यू आर अवेयर. और उसके बाद वॉर्स हुआ. एक तो रशिया यूक्रेन वॉर जो फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ, एंड देन अनदर वन इज इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट 2023 अक्टूबर की बात से जनरली यू कैन से, है ना. तो ये सारा वही उसी पीरियड में जो एसडीजी का पीरियड है. द पीरियड ऑफ एसडीजी 2015 टू 2030. दिस इज द पीरियड ऑफ एसडीजी. और ये दोनों जो है बोथ आर एक्चुअली कमिंग, दोनों के तीनों जो है इन द सेम पीरियड. तो अगर 2015 से कुछ इंप्रूवमेंट देखा भी जा रहा था, तो यहां पर आके थोड़ा सा गड़बड़ा गया. जस्ट आई एम गिविंग एन आइडिया. थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए बिकॉज एसडीजी इज इंपॉर्टेंट.
So if there is any passage in exam related with that, you will be easily able to connect it. That is why I'm saying, so from 2015 onwards, if there were improvements happening in SDG goals, during 2020 the things started reversing at some places in some goals. Okay, and especially after 22 and 23 we have seen also, because of wars, conflicts, the improvement is not that much, which we are actually thinking of, which ideally it was supposed to be. Okay, so एक rough idea होना चाहिए, just have a rough idea. So let us begin with first no poverty. तो अगर आप देखोगे इसमें लिखा है SDG 1. So these all are documents from direct United Nations website. I have not taken it from anywhere else, इधर उधर से नहीं, the original content पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, eradicate extreme poverty for all people by 2030, ये टारगेट है ना. एंड तो अब एक्सट्रीम पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है $2.15 पर पर्सन पर डे 2017 पीपीपी. इसका क्या मतलब हुआ, यानी कोई एक आदमी है, ठीक है, इफ अ पर्सन इज अर्निंग मोर लेस देन $2.15 पर पर्सन पर डे. $2.15 लगभग आई कैलकुलेटेड 178 के आसपास, मतलब समझो 180 रुपीज के आसपास आ रहा है इंडियन टर्म में. लेकिन पर पर्सन है, ऐसा नहीं है कि उस, और पर डे, ये है कॉन्सेप्ट. एक दिन में एक आदमी 180 से कम कमा रहा हो, लेकिन अगर उसकी फैमिली होगी तो फिर वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन. ये सब पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. तो पॉवर्टी के क्या डेफिनेशन है, तो यही है $2.15 पर पर्सन पर डे. ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वर्ल्ड लेवल पर, कहीं भी यूज किया जाता है. ओके, इससे कम होगा सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंटरनेशनल लेवल में बिलो पॉवर्टी लाइन पर आ जाओगे. इंडिया का डोमेस्टिक का थोड़ा अलग है स्टैंडर्ड, बट यू शुड नो दिस. ठीक है, एट परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स, पीपीपी टर्म्स होता है, ये आपको नहीं उतना जानना है कि इसका मतलब क्या हुआ पीपीपी टर्म्स, बिकॉज दैट इज स्लाइटली ऑन हायर साइड. तो बस आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई आदमी जैसे, लेकिन अगर ऐसा है, मान लीजिए एक आदमी है, मेल है, और उसकी वाइफ है, और उसके 2 बच्चे हैं, C1 और C2. तो अगर ये आदमी अकेला 180 रुपए एक दिन में कमा रहा है, इससे ज्यादा कमा रहा है, तो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज पॉवर्टी लाइन. लेकिन इसके बच्चे नहीं भी तो कमा रहे हैं, मान लीजिए इसकी वाइफ भी नहीं कमा रही है, तो 180 by 4 डिवाइड होगा. इसलिए आई एम सेइंग पर पर्सन. यू गॉट इट? तो पर पर्सन चाइल्डहुड का सब डिवाइड करके पर पर्सन कितना आ रहा है, 180 से ऊपर आ रहा है कि नहीं. दिस इज द आइडिया. आई होप इट इज क्लियर. अगर मान लीजिए ये बंदा 200 रुपए कमा रहा है, इसकी वाइफ भी 200 रुपए कमा रही है, तो कितना हुआ टोटल इनकम फैमिली का? 400 हुआ. अब 4 लोग हैं, बच्चे नहीं कमा रहे, तो डिवाइडेड बाय 4, so 100 रुपीस पर पर्सन हुआ अर्निंग. So it means the person is the family is below poverty line. You got the concept? I think it's clear, simple. If yes, then write yes. तो यही है कि इससे ज्यादा होना चाहिए, and that is what they are saying it. COVID-19 marked a turning point, reversing these gains. मतलब जो improvement हो रहा था, the improvement that was happening in elimination of poverty, that was reversed because of COVID-19 and all. ठीक है, तो अब इसने परसेंटेज वगैरह नहीं याद रखना है, but have a just basic idea about it. Similarly, the second is SDG 2, which talks about zero hunger. That we have to be hunger-free world by 2030. There should not be any food insecurity and all. Okay. तो इसमें दिखा रहे हैं कि by 2022, approximately 735 million or 9.2% of world population is actually in chronic hunger stage. So लगभग 9% लोग जो है chronic hunger stage में and all. Again, वो same चीज, वो COVID-19 की वजह से disturbance हो गया था, COVID-19 and wars की वजह से the things got disturbed and all. तो इस पर एक इंडेक्स भी निकलता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स. आई होप यू आर अवेयर. सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन इट, एंड इस पर कई बार इंडिया की रैंक बोली जाती है कि कितनी. सो 105 इज इंडियाज रैंक. कभी-कभी एग्जाम में पूछते हैं ये. ठीक है, दैट इज व्हाई आई हैव हाइलाइटेड हियर व्हाट इज इंडियाज रैंक एट ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड ऑल, एंड इट इज इन सीरियस लेवल कैटेगरी विद स्कोर ऑफ 27.3. ओके, सो ये जीरो हंगर हो गया. देन द थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग. दिस इज SDG 3. गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग इज द, इसमें हेल्थ में क्या है, यानी इंप्रूवमेंट इन हेल्थ. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ऑफ कोर्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस, बिकॉज हेल्थ में खर्चा बहुत ज्यादा होता है ना, एक्सपेंडिचर एंड ऑल. इफेक्टिव HIV ट्रीटमेंट हैज कट एड्स रिलेटेड डेथ्स बाय 52% सिंस 2010. इन HIV के अच्छा ट्रीटमेंट की वजह से एड्स रिलेटेड डेथ काफी हद तक रिड्यूस हुआ है. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. एंड द COVID-19 पैंडेमिक एंड अदर ऑनगोइंग क्राइसिस हैव impeded मतलब रुकावट, रेसिस्टेंट towards the progress of SDG 3. Again, I'm saying कि improvement हो रहा था, but because of COVID pandemic and now plus wars, actually the things are actually reversing again. So we are seeing tuberculosis, malaria deaths and all. So these are the things being talked about.
है ना। फिर ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता होगा कि यूएन का टारगेट है कि टीबी, मलेरिया एंड एड्स एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीज शुड बी एलिमिनेटेड बाय 2030, है ना। और मैंने आपको बताया भी कि इंडिया का जो टारगेट है टीबी का वो 5 साल बिफोर है। सो इंडिया टारगेट इज 2025 टीबी मुक्त भारत अभियान, सुना है आपने? So our target is to eliminate TB by 2025, means this year, by the end of this year. But the United Nation target is that we will be eliminating TB by 2030. ठीक है, so ये सब पता होना चाहिए. Then we have, है ना, तो a significant portion of global population still lacks vital healthcare access. तो अभी भी बहुत सारे लोगों को healthcare, जो basic healthcare facilities है, that is not available. Immunization मतलब vaccination is one of the world's most successful and cost-effective health intervention. Still, however, alarming decline childhood vaccination and all we have seen. ठीक है, तो अभी भी बहुत सारे लोग को वैक्सीनेशन नहीं मिलता, etc. and all that is what is being talked. The next is quality education, right? So quality education, again the same thing. Progresses have been made, but COVID-19 has created problem. Why? Because COVID-19 happened, lockdown happened. The rich, those who are actually can afford smartphones, जिनके पास डिजिटल डिवाइसेस था, इंटरनेट था, वो तो अपना पढ़ाई कर लिए. But those who are very poor, those who were dependent directly on government schools, they did not have any smartphones. Even their parents are not educated or rich enough to buy the phones. उनके लिए तो बेचारे पीछे चले गए ना, जब लॉकडाउन हुआ 2 साल जो डिस्टर्बेंस हुआ एंड ऑल. So that is what is being talked about here. Okay. Second thing is addition of free primary school and all. तो ये सब बता रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बाय 2030 एंड ऑल, है ना. एजुकेशन हेल्प रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड ऑल. एजुकेशन से इनइक्वालिटी भी रिड्यूस होता है ना. जो एसडीजी 10 विल बी टॉकिंग, एसडीजी 10 टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी. तो एजुकेशन से ही कम होता है, मतलब वन एस्पेक्ट इज एंड रीच जेंडर इक्वालिटी, बिकॉज इफ गर्ल्स आर बीइंग टॉट, सो इट विल इंश्योर जेंडर इक्वालिटी, है ना, जो कि एसडीजी 5 है. ठीक है. सो द नेक्स्ट एसडीजी है, उसका एजुकेशन से रिलेशन है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू एजुकेशन, प्लीज कैन यू प्लीज टेल मी व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट दिस. इट वाज नॉट ओरिजिनली mentioned but later on by the Supreme Court judgment, जैसे एक judgment है TMA Pi Foundation case, PA Inamdar case. The Supreme Court said that right to education is a fundamental right, and later on the 86th amendment of the Constitution, Constitutional Amendment 2002 by the Parliament of India, added Article 21 capital A. ठीक है, so B is the right answer. Yes, Safi Nomani and Agastya, you both are right. 21 capital A है, ऐसे मत लिखिएगा 21 क्लॉज ए हो जाता है, ये दूसरी चीज है, स्मॉल ए नहीं. 21 कैपिटल ए इज अ सेपरेट आर्टिकल. इट शुड नॉट बी रिटन 21 स्मॉल ए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखा होना चाहिए. ठीक है, देयर इज अ रीजन. ठीक है, बिकॉज इंसर्टेड नया आर्टिकल है ये. ठीक है, सो यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर इन दिस. राइट आंसर इज बी. ओके, सो आप देख सकते हो राइट टू एजुकेशन टॉक्स अबाउट बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 years फॉर फ्री, है ना. 21 education, है ना, making education a fundamental right and all. So B is the right answer to this question. Let's move on to the next. SDG 5 talks about gender equality. Okay, so gender equality is not only fundamental right but a necessary foundation and all. तो ये सब आपको पता होगा, है ना. gender equality, why so important it is? हाँ, because yes, gender equality देखो उसमें लिखा on an average women in the labor market still earn 23% less than men globally. अभी भी जो लड़कियां हैं उनको 23% कम सैलरी मिलती है ना, एज कंपेयर टू मेन, सेम काम करने के लिए. ओके, दीज आर द थिंग्स बीइंग डिस्कस्ड. देन देयर आर इश्यूज ऑफ सेफ्टी ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एंड ऑल. ठीक है, एंड इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज, मतलब जिस हिसाब से चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करने का कोशिश किया जा रहा है, 300 साल लगेगा एलिमिनेट करने में. So the way actually the entire world is fighting the child marriage or ending the child marriage, it will take 300 years. It means there is still a prevalence in the world of child marriage. We are talking about world level अभी. ठीक है, इंडिया लेवल पे नहीं बात हो रही, जनरली वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही. So this you should be knowing it. Okay, now we are talking about equal pay for equal work for men and women. So which article talks about it? There is somewhere written here. Actually, the directive principle of a state policy talks about equal pay for equal work. जिसको भी हम लोग बात कर रहे हैं कि इक्वल पे इक्वल वर्क नहीं है ना, बता रहे हैं कि 23% लेस फीमेल अभी भी सैलरी मिलती है एंड ऑल. तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? इट्स मेंशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओरिजिनली मेंशन, इट वाज नॉट एडेड लेटर ऑन, इट वाज मेंशन ओरिजिनली. द राइट आंसर इज डी.
आर्टिकल 39 टॉक्स अबाउट इट. अगर आप आर्टिकल 39 क्लॉज डी पढ़ोगे, so it says there shall be equal pay for equal work for both men and women. अगर दोनों एक जैसा काम करें तो एक सैलरी होनी चाहिए. That's the idea. Yes, definitely one right. हाँ, D is the right answer. किसने लिखा था D? हाँ, ठीक है. So that is what is being talked about कि gender equality होना चाहिए, है ना. तो gender equality सब डायमेंशन, मतलब एजुकेशन है ना में भी, हेल्थ सेक्टर में भी, ठीक है, फिर जो जॉब सेक्टर में एटसेट्रा एंड ऑल, ठीक है. सो दिस आर, एंड अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स. दैट इज द आइडिया. और इनफैक्ट आपने ये पढ़ा होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेइंग दिस. ये कई बार कहा गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा. इनफैक्ट इट हैज बीन कोटेड बाय इकोनॉमिक सर्वे मेनी टाइम कि if actually gender labor force participation of women and men will be equal, then India's GDP will rise by 27%. ठीक है. सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो चीफ थी उस टाइम पे क्रिस्टियन लगार्ड. ये पुराना है बट पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी फेमस एक्चुअली थिंग. खैर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्लीन वाटर मतलब साफ पानी होना चाहिए, और सैनिटेशन मतलब वही, हाँ, नाली वगैरह, सीवेज, सारा कुछ पानी, है ना. सो दीस थिंग्स शुड बी एकदम क्रिस्टल क्लियर. व्हाई? बिकॉज ये दोनों हेल्थ से रिलेटेड है. If you won't get clean water, and if you drink or utilize bad water or like contaminated water for food or for drinking purpose, of course your health will be damaged, and of course इससे life expectancy कम हो जाएगी, youth population will die, and the low GDP will go down, etc. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि clean water and sanitation होना चाहिए. So we have a separate ministry called as Ministry of Jal Shakti. And this is formed as a result of merging two ministry, A and B. So what are the name of these two ministry? Because this is a previous year question of CLAT. National Water Day also we celebrate. Very good, Safi. तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री बनाएगी इसीलिए, क्लीनलीनेस ऑफ वाटर के लिए, है ना, मतलब पानी सफाई एंड ऑल. सो दिस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जिंग टू मिनिस्ट्री. और ये क्वेश्चन आया था 2021 में क्लैट में कि कौन सी दो मिनिस्ट्री मर्ज की गई. सो इट्स अ होमवर्क, गो एंड फाइंड आउट, एंड आफ्टर द वंस द क्लास इज ओवर राइट इट इन द कमेंट. क्लास ओवर हो जाएगा, नीचे कमेंट में लिखिएगा. ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, है ना. तो इसमें उसके लिए एक नीति आयोग का इंडेक्स भी निकलता है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. ठीक है. दिस इज रिलीज्ड फॉर इंडिया लेवल सर्वे कि कितना पानी है अवेलेबल एंड ऑल. मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस इंडेक्स के. अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सर्च इट, बट दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड टू फाइंड आउट हाउ मच the prevalence of water is there, or the contaminated water or clean water is there. So this is what you should know. ठीक है. नहीं, पोर्ट मिनिस्ट्री को नहीं मर्ज किया गया था. जल शक्ति एक मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन था, एक मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स गंगा रिजुविनेशन करके था. सो ये दोनों मिनिस्ट्री को मर्ज किया गया था. ठीक है. ओके, लेट्स मूव ऑन. SDG 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. अफोर्डेबल मतलब जो भी आपको एनर्जी मिले, जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, है ना. एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये भी तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी का फॉर्म है ना. तो जो भी आपको मिले वो अफोर्डेबल हो. अफोर्डेबल मींस द कॉमन पीपल कैन अफोर्ड, कैन बाय इजीली. और क्लीन एनर्जी मतलब है कि इट शुड नॉट बी डैमेजिंग एनवायरनमेंट. तो क्लीन एनर्जी मतलब इट इज रेफरिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इशारा है ना. सो वी शुड मूव फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी. दैट्स द आइडिया, है ना. सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी एंड ऑल. तो दैट इज द आइडिया. और एनर्जी तो हर जगह यूज होता है, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, है ना. सो दैट इज व्हाट वी शुड बी नोइंग इट, है ना. हाँ, तो ये बता रहे हैं कि एंड द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज द डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज एंड ऑल. 60% ऑफ द टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो है वो एनर्जी कंजम्पशन से आता है, एटसेट्रा. तो यही बताया जा रहा है कि द टारगेट इज एट दैट बाय 2030 वी शुड बी मूविंग टुवर्ड्स इट, है ना, फ्रॉम, है ना. तो कि जो पॉल्यूटिंग फ्यूल से इसको मूव करके वी शुड बी, जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी ट्रांजिशन का वो यही है. एनर्जी ट्रांजिशन समझते हो ना. तो ट्रांजिशन मींस मूविंग फ्रॉम, है ना, like petrol, natural gas or conventional source of energy towards renewable energy, जैसे electric vehicle, solar, है ना, wind energy, है ना, hydroelectric power, etc. So these are the things. The next is decent work and economic growth. This is also very important, है ना. Promote लिखा ना, inclusive and sustainable economic growth and all. Decent work, inclusive growth. तो पहले आपको समझना decent work क्या होता है. देखो इसमें लिखा ना है. पहले decent work का मतलब सिंपल है, that है ना, fair income होना चाहिए, or it should actually be actually decent, मतलब protecting human dignity under Article 21.
For example, I'm sure you must have seen this. This is what we call it as manual scavenging. Unfortunately, this is even still practiced in India. ये 2018 की रिपोर्ट है, but manual scavenging has been banned by the Supreme Court of India. Why? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया? Because it violates Article 21. Right to live with dignity. Right to life also says right to live with dignity. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी इज्जत वाली जिंदगी हो, खाली जिंदगी थोड़ी बिताना है, इंसान की तरह जिंदगी में. दिस इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज व्हाट वी कॉल इट एज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी. एंड दैट इज व्हाई, सिंस इट इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी, दिस इज नॉट अ डिसेंट वर्क. वो डिसेंट वर्क की कैटेगरी में नहीं आएगा. और डिसेंट वर्क का मतलब होता है कि वो आदमी वर्क ऐसा करे जो उसकी डिग्निटी को मतलब हार्म नहीं करे. सो दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ अ डिसेंट वर्क इज. ओके, और प्लस फेयर वेज हो, है ना. जैसे देयर इज अ लॉ कॉल्ड एज मिनिमम वेज एक्ट, आपने नाम सुना होगा. नहीं, ऐसा नहीं हो कि काम करने के लिए बहुत ही कम पैसा मिल रहा हो, so the person is paid very less for doing a work. जैसे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह क्यों प्रैक्टिस है, जो बेचारे वो इतने गरीब हैं कि उनके पास कुछ है नहीं, तो अगर वो ही करना होता तो वो भी राजी हो जाते करने के लिए, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी मनी टू अर्न एंड ऑल. सो दैट इज व्हाट द आइडिया इज. सो दिस इज द आइडिया कि डिसेंट वर्क का मतलब ये है कि वी शुड एलिमिनेट सच टाइप ऑफ जॉब. तो आप बोलोगे सर वो सब करेगा कौन? तो मशीन करेगा वो सब काम. नॉट एज वी हैव अ टेक्नोलॉजी instead, and those people who are doing manual scavenging, they should do something better, कुछ अच्छा नौकरी करे, है ना. That is the idea about it, कि उनको education, learning, skill. Okay, so that is what the idea is. Multiple crises are facing global economy and serious stress and all. Okay, so global labor productivity has increased and employment has decreased, etc. तो इसमें अपना डिटेल नहीं जाना, but just have an idea कि decent work and economic growth का क्या मतलब है. Industries, innovation, infrastructure, ठीक है. इंडस्ट्रीज तो समझिए कि इंडस्ट्री होना चाहिए. इनोवेशन मतलब नई चीज को अगर कहीं इनोवेशन हो रहा है, सो इट शुड बी प्रमोटेड, है ना. वी हैव ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आल्सो फॉर दैट. जैसे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई इनोवेशन हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में इनोवेशन हो रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल में इनोवेशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इफ देयर इज इनोवेशन इन डन इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल, दैट इज वेरी गुड, बिकॉज इट विल इंश्योर दैट देयर विल बी लेस पोल्यूशन एंड ऑल. तो नई चीज इजाद करना, जैसे अभी चैट जीपीटी हुआ, ये तो इनोवेशन ही है ना, 2 साल पहले हुआ था, राइट. सो दिस इज अ वेरी न्यू इनोवेशन व्हिच इज वेरी मच हेल्पफुल. 2-3 years back we have seen it, and it is actually, it has an artificial intelligence and all. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट समझिए, जैसे रोड्स, रेलवेज, कनेक्टिविटी. जैसे रोड हुआ तो रोड बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, सो इट इज इंपॉर्टेंट. अगर रोड टूटी फूटी है तो आने जाने में तकलीफ दे, ठीक है. सो इट इंपैक्ट्स ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज सारे सेक्टर्स में रोड, रेलवेज, हाईवेज, ब्रिजेस, है ना, buildings industry etc, and it creates employment and all. Then reduce inequality, ये मैंने बताया. एक तो मैंने SDG 5 बताया था, talking about gender equality, स्पेसिफिकली जेंडर से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे reduce inequality in all sense. वो जेंडर की पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है और किसी और पर्सपेक्टिव में भी, है ना. जेंडर कास्ट बेसिस पर हो, अगर रिलीजन बेसिस पर हो, कंट्री बेसिस पर हो, मतलब कोई कंट्री बहुत रिच है, कोई बहुत पुअर है. ओके, देन वी हैव एक्चुअली जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, देन वी हैव एक्चुअली ओल्ड पीपल हैं, और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. बहुत सारे रीजन हो सकता है. इनइक्वालिटी के कारण बहुत कुछ हो सकता है. रीजन हो सकता है, हिली एरियाज हो सकता है, एंड कंट्रीज भी वैरी करता है. ऑल्सो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, कि वी शुड एंश्योर दैट देयर शुड नॉट बी मच इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड, है ना. तो उसके लिए भी ऑल्सो वी हैव अ कॉन्सेप्ट, है ना. तो लेकिन इनकम, एज, सेक्स, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रेस, क्लास, एथनिसिटी, रिलीजन, ये सब रीजन से. तो वी हैव एक्चुअली टॉक अबाउट मिनिमाइजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. ये कहां लिखा हुआ है? मिनिमाइजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में लिख दिया गया था, और एसडीजी में 2015 में ये सब ऐड किया गया, बट कॉन्सेप्ट वाज इवन देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन 1950. Minimizing concentration of wealth, where it is mentioned, in which DPSP? Please guys, बताइए, where it is mentioned? Article 39 again. अभी मैंने थोड़ा पहले Article 39 डिस्कस किया ना, कहाँ चला गया Article 39? Yes, 39 या 39A में होगा, है ना. Yes, the concentration of wealth and means of production of wealth, है ना. ये है does not result in concentration of wealth, ये minimizing concentration of wealth. Yes, 39 clause C, ठीक है ना. तो that is what the idea is. खैर ये हो गया. Then SDG 11 talks about sustainable cities and communities,
है ना। सस्टेन शहर यानी अर्बन एरियाज में सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, मतलब वी शुड नॉट बी अननेसेसरी डूइंग वेस्टेज, बिकॉज अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम क्या है, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, तो कूड़ा गार्बेज बहुत जमा होता है। अगर आपने सुना होगा दिल्ली के आसपास भी, तो पूरा गार्बेज माउंटेन बन जाता है। तो अगर ओवर यूज करोगे शहर में, एक आदमी को मान लीजिए 4-5 कपड़े की जरूरत है, या 5, 6, 8, 10 जोड़े की जरूरत है, कोई 100-200 जोड़ा कपड़ा रखे हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब वो वेस्टेज होगा, तो अब 10, 20, 50 जूता रखे हुआ है, मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं हम सही, और एक आदमी को 1 या 2 कार की जरूरत है, 25 गाड़ी रखे हुआ है, और समथिंग लाइक दैट, सो दैट इज ऑल्सो एक टाइम वो गार्बेज बनेगा, अनसस्टेनेबल हो गया ना वो। तो यू शुड हैव एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी इन ऑल एंगल्स, है ना। सस्टेनेबल सिटीज का यही मतलब हुआ, है ना, और एयर पोल्यूशन कंट्रोल होना एंड ऑल, सो दीस आर द थिंग्स। सो हाँ, तो ये अर्बन एरियाज में स्लम लाइक कंडीशन का भी इश्यूज होता है, सो दीस आर द थिंग्स यू शुड नो। और पूरे वर्ल्ड की 56% ऑफ द पॉपुलेशन आर एक्चुअली लिविंग इन अर्बन एरियाज, जो कि 2050 तक बता रहे हैं कि 70% हो जाएगी, ठीक है। और इंडिया का जो 2011 के इकोनॉमिक सर्वे सेंसस है, उसके हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन इज 31.16%। अब तो ये बढ़ गया होगा, अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स ओल्ड, सो मे बी 40% के आसपास आ गया होगा, आई थिंक 35-40% अर्बन एरियाज इन इंडिया करेंटली, ठीक है। The next is SDG 12, responsible consumption and production. Again, it is talking about responsible consumption. सारी चीज यहीं पर है। Whenever we are talking about sustainable development, the thing is responsible consumption. यानी फालतू नहीं वेस्ट करना है ना। We have to change our consumption habit. That is what lifestyle for environment also talks about. है ना, क्या mindlessly consumption नहीं करना है। We have to control ourselves. है ना, food waste नहीं होना चाहिए, clothing, जो कोई भी ऐसी चीज है, एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये बेसिक चीज कैसे स्टार्ट होगा? अगर आप घर में हो, रूम पे हो, रूम से बाहर जा रहे हो, तो आप लाइट्स फैन ऑफ करके जाओ। बेसिक स्टार्ट तो यहीं से होता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो स्टार्ट पहले अपने घर से करना है ना, कि अगर फालतू इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद करना है, ठीक है, लाइट ऑफ, बेसिक थिंग है ना। सो दीज आर द थिंग्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट। सो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबली करना है, दैट इज द आइडिया। सो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी, वी शुड बी प्रोड्यूसिंग दैट मच ओनली। अननेसेसरी ओवर प्रोडक्शन नहीं करना है किसी भी चीज का, कोई भी प्रोडक्ट का, दैट्स द आइडिया। देन क्लाइमेट एक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट एक्शन में तो वही है कि मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रिवर्स करना है, सो दैट इज द क्लाइमेट एक्शन। अगर आप देखोगे यहां लिखा है, टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल एमिशन। ये क्या है? ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट टारगेट है। ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट टारगेट इज दिस, जो ये लिखा हुआ है। एंड वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड, इस क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट टारगेट, ओके। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट। तो इसकी भी बात हो रही है कि यस, वी हैव टू एंश्योर दैट द क्लाइमेट चेंज शुड नॉट बी हैपनिंग, ग्लोबल वार्मिंग शुड नॉट बी हैपनिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशन शुड बी कंट्रोल्ड। तो जीएचजी एमिशन जो दुनिया में इंसान लोग करें, कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, COP21 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, राइट। सो दिस शुड बी कंट्रोल्ड, है ना। मिटिगेटिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट्स, कि अगर मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट की जीएचजी एमिशन कंट्रोल में आए, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। देन लाइफ बिलो वाटर, मतलब एक समुद्र के नीचे, वी आर टॉकिंग अबाउट मैरीन लाइफ्स, इसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। व्हाई? बिकॉज व्हेन ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है पता है? ओशन का लेवल राइज हो रहा है। फिर ओशन के अंदर अगर वार्म ज्यादा हो जाएगा, तो जितने भी मैरीन बायोडाइवर्सिटी उसमें लॉस होता है। जैसे अगर आपने सुना होगा कोरल्स बहुत जो होता है ना, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इक्वेटर और के आसपास ही रहता है। सो इफ देयर इज अ स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर, सो द कोरल्स विल गेट डैमेज्ड, ओके। हाँ, हाई सी ट्रीटी वी हैव, यस काफी वेरी गुड। हाँ, देन और भी क्या चीज होती है, जैसे अगर मान ली शिप जा रही है, हाँ, उसमें ऑयल स्पिल हो गया, तेल गिर गया पानी में, सो दैट कॉज द डैमेज ऑफ मैरीन एनिमल्स एंड ऑल, ओके। दूसरी चीज बता रहे हैं कि आइडियली जो है ना, जो एवरेज पीएच है वो 8.1 है। आप समझते हो पीएच स्केल, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस। मतलब 0 से लेकर के 14 तक पीएच स्केल होता है। सो इफ पीएच इज 7, देन इट इज न्यूट्रल। पीएच इज 0 तो एकदम एसिडिक हो गया, और 14 तो एकदम बेस हो गया, है ना। आई होप यू आर अवेयर, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है स्कूल में। सो पीएच 8.1 है, हाँ। और ओशन का जो कि
30% मोर एसिडिक है देन प्री इंडस्ट्रियल टाइम। प्री इंडस्ट्रियल टाइम मतलब 1750 के मुकाबले, कंपेयर टू बिफोर प्री 1750, टुडे वी आर 30% मोर एसिडिक। एसिडिक कैसे हो जाता है देखो मैं बताता हूं। मान ये समुद्र है, ठीक है, ये ओशन है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगी, अंदर जाएगा, ओशन में वाटर रहेगा, यस। सो द रिएक्शन विल हैपन, H2O plus CO2, H2CO3, कार्बोनिक एसिड विल बी फॉर्म्ड। सो आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। अगर पॉल्यूशन ज्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस इमिशन ज्यादा होगा, तो ओशन एसिडिफिकेशन भी होता है। तो यहाँ पे बता के रहे कि ओशन एसिडिफिकेशन हैज हैपेंड, 30% एसिडिफिकेशन ज्यादा है। मतलब 8.1 नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा और इधर होना चाहिए, 9 उनके पास होना चाहिए था, मतलब समझ हो ना, इधर आ गया, थोड़ा सा और इधर होना चाहिए था समवेयर। दैट इज व्हाट दिस यूनाइटेड नेशंस वेबसाइट सेज। इसका मतलब क्या है कि अगर ओशन एसिडिफिकेशन होगा तो मैरीन लाइफ डेथ होगी कि नहीं, बिकॉज वो तो नेचर ने बैलेंस बनाया था, एंड वी हैव कॉज्ड डैमेज टू द नेचर, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बिकॉज ऑफ विच ओशन एसिडिफिकेशन हैपेंस, एंड मे बी मैरीन लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड। उससे और क्या क्या हो सकता है पता नहीं। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना, कि उसको भी हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। एंड ऑफ कोर्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ फूड, मेडिसिन, बायोफ्यूल एंड अदर प्रोडक्ट्स। आपको पता है मेडिसिन बहुत सारी निकलती है फिश से, जैसे लीवर ओवर की दवा आती है, बहुत सारी मेडिसिन आती है। इफ यू आर अवेयर, इफ यू मीट एनी डॉक्टर हेल्थ, ही और शी विल टेल यू कि बहुत सारी दवा होती है जो फिश के ऑयल से बनती है, ठीक है। फिर फूड भी खाने, है ना, फूड एंड बायोफ्यूल्स, आई होप यू आर अवेयर, बायोफ्यूल्स वगैरह, है ना। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। तो हाँ, और ये ग्रेटेस्ट सिंक है, कार्बन सिंक, मतलब कार्बन एब्जॉर्ब करता है प्लैनेट का। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेंटेन्स हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इट इंश्योर्स दैट द वाटर साइकिल शुड बी बैलेंस्ड एंड ऑल। ये सब डैमेज हो जाएगा अगर गड़बड़ होगा तो। लाइफ ऑन लैंड मतलब जमीन पर, लैंड में इसको भी है, हाँ, तो लैंड में क्या क्या सब कुछ आ गया, फॉरेस्ट आ गया, डिसर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, सब जमीनी पे तो है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, फॉरेस्ट कट नहीं करना है, एंड ऑल दीज आर द थिंग्स, है ना। एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन इज एक्चुअली कॉजिंग 90% ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो ये सबको कंट्रोल में करना है। दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना। सो फॉरेस्ट कवर नियरली 31% ऑफ द वर्ल्ड, बट 80% ऑफ द स्पीसीज, यानी वर्ल्ड का 31% फॉरेस्ट है, लेकिन स्पीसीज जो है ना 80% वही होते हैं, है ना भाई, एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट। इंसान को छोड़ के तो प्लांट और एनिमल तो ज्यादा वही होते हैं ना। So humans do not live in forest, but the rest of the animals and plant, insect, they do live in forest. उनकी घर वही है ना। So that is what the idea is. But if we keep on cutting the forest, it will cause damage, of course. So that is the idea. Then peace, justice and a strong institution की बात हो रही है ना। तो we have to ensure peace, justice. वर्ल्ड में पीस होना चाहिए, there should not be any war. आपको पता है वॉर होता है तो इससे इन्वायरमेंट डैमेज कितना ज्यादा होता है, I don't need to explain much. सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बर्बाद होते हैं, it creates pollution, then we have to do again the infrastructure development and all. जस्टिस, इंसाफ होना चाहिए, है ना। सो वी हैव ICJ, ICC एंड ऑल। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, है ना, डोमेस्टिक लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। बिकॉज इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल इंडिया में RBI है, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, तभी ना बैंकिंग ट्रस्ट होता है, लोग बैंकिंग करते हैं कंट्री में ऑल। सिमिलरली सेबी है इंडिया में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टू कंट्रोल स्टॉक मार्केट एंड ऑल। सो ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए हर कंट्री में, एंड एट वर्ल्ड लेवल ऑल्सो। दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ताकि इनसे इंश्योर होगा कि पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, इंडिया में अदालत होना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू ऑल आर लॉ स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, इसका स्ट्रांग होना जरूरी है कि नहीं, यस और नो? यस ऑफ कोर्स। अगर ये स्ट्रांग रहेगा तभी तो इंसाफ मिलेगा, तभी तो पीस रहेगा कंट्री में। So if a criminal is not punished by the court, then what will happen? So there will be instability in the country. इसीलिए अदालत, institutions का, judiciary, police, all should be, army, all should be strong enough, है ना, to ensure peace and stability in the country. That is what is being talked. ठीक है। So ये SDG 16 और लास्ट है पार्टनरशिप फॉर गोल्स, यानी जितना भी 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ा, इसको इंश्योर करने के लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि सारे वर्ल्ड को, डिफरेंट कंट्रीज शुड कम टुगेदर एंड पार्टनरशिप फॉर दैट। कैसे, अब मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोग क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहे थे, है ना, सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट एक्शन, SDG 13 ही है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ, यस। तो अब ये कैसे अचीव होगा? So for that, all the countries should come together. तो SDG 17 ये कहता है कि पार्टनरशिप फॉर गोल्स होना चाहिए। कैसे? जैसे we have done UN framework convention on climate change, Earth summit, इसमें ये नहीं कि सारे कंट्रीज एक साथ आ रहे हैं, all countries come together and discuss. Then life on land, अभी बात किया, अभी हम डिस्कस,
एंड लाइफ ऑन लैंड के लिए वी हैव यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये सब क्या है? इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, पीपल कमिंग टुगेदर, ये है ना, पार्टनरशिप फॉर गोल्स मींस है ना, द कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर एंड ऑल, है ना, नॉट ऑल कंट्रीज आर सेटिंग ऑफ एट द सेम टाइम एंड ऑल, है ना, सो दैट्स द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दुनिया सारे लोग एक साथ आए तभी ये पॉसिबल हो सकता है। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। नाउ ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गया, थोड़ा सा 1-2 मिनट और मैं लूंगा आपका। सिमिलरली एसडीजी इंडिया इंडेक्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर आस्क्ड इन एग्जाम, इसीलिए मैं बता रहा हूं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस इट? तो नीति आयोग। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स इसलिए निकाला जाता है कि मेजर किया था कि इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी है, हाउ वी आर परफॉर्मिंग, लाइक the different states are performing as far as SDG is concerned, हम लोग का इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो डिफरेंट स्टेट्स का, तो देखो ये तो सारी स्कीम्स है, वो सारे ऑल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑल एसडीजी, है ना। जैसे मैंने बात किया नो पॉवर्टी, तो पॉवर्टी के लिए कौन कौन सी स्कीम है, पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए, ओके, टू एंश्योर दैट देयर शुड नॉट बी एनी पॉवर्टी, सो वी हैव अ लॉट ऑफ स्कीम्स, है ना। तो ये सारे स्कीम्स लिखे हैं। गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए आयुष्मान भारत इज देयर, यस, है ना, एसडीजी 3, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। देन एजुकेशन के लिए वी हैव समग्र शिक्षा अभियान, तो ये सब अभियान है, तो ठीक है, आप ये थोड़ा देख लेना स्कीम्स, अदरवाइज वी हैव अ सेपरेट क्लास फॉर स्कीम्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप सर्च करना इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, करियर लॉन्चर, लॉ एंट्रेंस, ऐसे पूरा सर्च करना, यू विल गेट दैट वीडियो, गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये बताते हैं इस एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कि वी आवर स्कोर हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 57 टू 71 इन 2023-24, ठीक है। तो स्कोर में इंप्रूवमेंट हुआ इंडिया का। और अगर आप देखोगे नीचे 4 ये बना हुआ, एस्पिरेंट, रेड वाला एस्पिरेंट है, येलो वाला परफॉर्मर है, ग्रीन वाला फ्रंट रनर है, और ये अचीवर है, ठीक है ना, थोड़ा सा कलर का फर्क है। तो अगर आप देखोगे परफॉर्मर में बिहार, झारखंड थोड़ा सा पीछे, मेघालय और यहाँ पर नागालैंड, बट रेस्ट ग्रीन वाला जो दीज आर वी हैव इंप्रूव्ड अ लॉट, है ना। देखो येलो था, ज्यादा येलो था, येलो थोड़ा कम हुआ, येलो और कम हुआ, येलो और एकदम कम हो गया। सो परफॉर्मेंस से वी हैव मूव टुवर्ड्स फ्रंट रनर, ठीक है। अचीवर अभी कोई नहीं है, ठीक है। So that is what, since we have improved, that is what is being talked about here. तो इसमें बहुत सारे की इंटरवेंशंस है और की इनिशिएटिव्स है एसडीजी अचीव करने के लिए, ठीक है। So that is what you should be knowing about. Then ये पूछा था एग्जाम, this is being asked in exam, ये एलेट में भी आया था और आई थिंक स्लैट वगैरह में कई सारे एग्जाम में आया था कि जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स में which state is at the top? So the answer is केरला। जनरली केरला टॉप पर रहता है, आई होप यू आर अवेयर, है ना, जैसे जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, ये सब में, है ना। सो रैंक 1 इज एक्चुअली केरला, लास्ट ईयर जुलाई का है। अगर अभी कुछ इंप्रूवमेंट होगा और चेंजेस होगा, सो प्लीज कीप ऑन वाचिंग दैट, फॉलोइंग दैट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एंश्योर दैट ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कवर्ड, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।